Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year. Today we are start a new exercise 6.4. 6.4 question number 1. In each case find the point of intersection P of x comma y of the pair of the line. So the two lines are given. 2x plus 4y minus 10 is equal to 0 and 5x minus 3y plus 1 is equal to 0. In this question we find the value of x and y. Now equation number 1 and equation number 2 solve by simultaneously. इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे सिमल्टेनियसली, और क्योंकि हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और सिमल्टेनियसली मेथड से हमारा सॉल्व करने किस तरह सॉल्व करेंगे मींस के एक्स या वाई के जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट सेम हो दोनों इक्वेशंस के, दैन उसको हम कैंसिल करेंगे और एक एक्स या वाई वेरिएबल आपके पास कैंसिल हो जाएगा और एक की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों के वेरिएबल्स दोनों के जो कोफिशिएंट है वो ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, ठीक है। एक्स के दोनों के जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है, एक का 2 है 5 है 4 और दूसरा 4 और 3 है। तो हमने इन दोनों के कोफिशिएंट को किसी तरह से सेम बनाना है ताकि ये कैंसिल हो जाए और हम लोगों के पास या एक्स कैंसिल हो या वाई कैंसिल हो, तो हमारे पास किसी एक की वैल्यू आ जाए, हम फाइंड आउट कर सकें। बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई point of intersection. So multiplying equation number 3 by equation number 1 by 3, equation number 3 equation number 1 by 3, so 3 2s are 6 and 3 4s are 12 and 3 10s are 30. So equation is this, because this is equation number 3 आ जाएगी, ठीक है। next one is the equation number 2. equation number 2 multiply by 4 because we multiply by 4, so 3 4s are 4 3s are 12, so variable of coefficient of y is same 12 plus 12 1 minus 12. then अब दोनों के वेरिएबल भी कोफिशिएंट सेम हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि इनके साइन सेम है, अगर साइन हमारे पास डिफरेंट है तो हम ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक प्लस में एक माइनस है, कोफिशिएंट भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है। तो नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और 26 आ गया, ठीक है। दैन दिस इज कैंसिल, प्लस 12x minus 12x cancel, minus 30 plus 4 is equal to minus 26. We find the value of x now adding 26 on both sides. Now in this step 26 dividing on both sides, 26 cancel with each other, so x is equal to 1. Now put x is equal to 1 in equation number 1. So 2 into 1, 4 into y minus 10 is equal to 0. So 2 1s are 2, 10 2 minus 10 is equal to 8. So adding 8 on both sides and dividing 4 on both sides, to 4 1s are 4, 4 2s are, so y is equal to 4. Hence the point of intersection of the given lines is 1 comma 2. Now second one is the condition of concurrency of the three lines having a common point. अब इसमें हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे कि इसका लेट L1 L2 एंड L3, अब 3 लाइंस हमें गिवन है तो हम इनका कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। बी अ गिवन लाइन एंड हैविंग द कॉमन पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन इफ triangle is equal to A1 B1 C1 A2 B2 C2 and A3 B3 C3 is equal to 0. This is the formula to find the concurrency of the 3 lines. Question number 2, show that the following line are concurrent. If the line of concurrent, then the find out the point of which the given line can be concurrency. Make a concurrency. So the line 1 is x minus y minus 2 is equal to 0. Second one is 2x minus y minus 5 is equal to 0, and third one is 11x minus 5y minus 28 is equal to 0. To find the concurrency of the lines, so using the formula A1 B2 C3 A2 B2 C2 and A3 B3 C3. A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 and C3 is equal to 0. Now put the coefficient of equation 1 2 and 3. So A1 is equal to 1, A2 is equal, B1 is equal to minus 1 and C1 is equal to minus 2. Now second, A2 is equal to 2, A
B2 is equal to -1 and C3 is equal to -5. C2 is equal to -5. Now the third line, equation of line 11a, B is equal to -5 and C is equal to -28. Now taking the determinant, so 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 28 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5. 28 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -25. देन सेकंड हम लोग क्या लेते हैं, माइनस इंटू माइनस, आपके पास क्या आ जाएगा, -1 तो +1 आ गया. इसको और इसको हम लोग छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 और 5 मल्टीप्लाई बाय 11. थर्ड वन हम लोग के पास क्या है जी, -2 है. इस रो को और इस रो को और इसकी कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर बच जाएंगे वो हम लोग लिखेंगे 2, -1, 11 और -5. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 और 11 मल्टीप्लाई बाय 11 -11. सो माइनस इंटू माइनस से हो जाएगा प्लस हो जाएगा. इसको हम फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास 3 आंसर आ गया. इसका हमारे पास -1 आ गया और ये हमारे पास 1 आ गया. नाउ 3 1 ज़ा 3, -1 आ गया और -2. सो 3 ये आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है, +3 और आ जाएगा जी -3, ठीक है. 3 + 3 -3 कैंसिल which is equal to 0. So therefore the given line are concurrent. From a point of concurrency, subtracting the equation number 2 and 1. Now subtract the equation number 2 and 1. So equation number, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 की जो भी साइन है, प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएंगे, माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएंगे. तो ये दोनों आपके पास कैंसिल हो गए. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x + 3 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. सिमिलरली हम लोग इस x की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में या 2 में जिसमें पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी. सो 3 - y -2 इज इक्वल टू 0. सो 3 - 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1. Now the remaining part of question number 1 and question number 2 is your homework.